echo of his call. Dear friends, how are you? मेरे प्रिय मित्र कैसे हैं आप? I would like to share something very special this morning. आपके बारे में कुछ बताना और आपसे व्यवस्था करना चाहता हूँ। There are two kinds of people in this world. इस दुनिया में दो तरह की मनुष्य हैं। Some people do the will of God in their life. कुछ लोग परमेश्वर की इच्छा करते हैं। Some people are not doing the will of God in their life. कुछ लोग परमेश्वर की इच्छा नहीं करते हैं। I don't know whether you are living in such a way to do His will in all the areas of your life. मुझे नहीं मालूम है क्या आप परमेश्वर की इच्छा हर एक परिस्थिति में करते हैं। 1 John chapter 2 verse 17 says like this. एक यूहन्ना का पुस्तक 2:17 ऐसा बताती है, He who does the will of God abides forever. जो भी परमेश्वर की इच्छा करते हैं सर्वदा के लिए जीता है। In this world, change is unchanging. यहाँ हम देखते हैं बदलावट कभी कभी बदलते नहीं हैं। Human life is also temporary. हमारा जीवन भी ऐसे ही होती है। The world is passing away. The lust of it also passing away. इस संसार बदलती है और गुजर जाती है। But he who does the will of God abides for ever and ever. लेकिन जो भी परमेश्वर की इच्छा करते हैं वो सर्वदा के लिए बने रहते हैं। The Lord here declares about everlasting life. यहाँ परमेश्वर इसके बारे में बताता है जो सर्वदा के लिए बने रहते हैं। It is an eternal life. ये तो हमारा अंतर की आत्मा होती है। You need to be eligible for the eternal life. ऐसी जीवन के लिए आप नियम होना चाहिए। God is willing to give it today. आज परमेश्वर देना चाहते हैं। You should try to do the will of God. आप करना है और परमेश्वर की इच्छा करना है। You should know the will of God in your life. आप जानना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा आपकी जिंदगी में क्या है। The greatest blessing of a believer or a Christian is to know the will of God in his or in her life. बहुत बड़ा मसीह की बच्चे के हृदय में ऐसा होना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा को जानकर और उसके अनुसार चलना। If you are not able to understand the will of God in your life, you should spend time with the Lord and ask Him to reveal His will upon your life. यदि आप नहीं जानते हैं परमेश्वर की इच्छा तो जानने के लिए आप परमेश्वर की संग होना चाहिए। For this purpose, don't go to any prophets. उसके लिए कोई भी भविष्यवक्ता के पास नहीं जाना है। Till this time, if you are not able to recognize your calling or the will of God in your life, यदि अब तक परमेश्वर की बुलावट को आप नहीं जाना है तो this Sunday you go to your church on time. इस रविवार को आपकी कलीसिया ठीक समय पर चलो। You offer a prayer to the Lord, asking Him to reveal the will of God in your life through your pastor of the church. वहाँ जाकर ऐसा प्रार्थना कीजिए ताकि आपकी पासवान भविष्यवक्ता बनकर आपको जो भी होने वाले हैं वो बता सकता है। Sometimes God will speak to you through the worship songs. कभी कभी स्तुति गीत के द्वारा परमेश्वर आपसे बोल सकता है। Or the prayer time. कभी कभी प्रार्थना के समय बोल सकता Or है। the preaching time. और कभी कभी सुसमाचार के He समय can speak to you in any way through the service of your church. वो किसी भी प्रकार चर्च की सर्विस की समय आपसे बोल सकता है। Also, you spend time with the Lord in the early morning as soon as you get up. इसके कारण सुबह जब आप उठते हैं तो परमेश्वर की संग हो। Also, you should read and meditate the Bible. वैसे ही व्यवस्था को आप पढ़ना चाहिए। It should be done in a proper way. वो तो एक अच्छी रीति में करना If चाहिए। you don't know how to read the Bible, you ask your pastor, he will train you and teach you. यदि आपको बाइबल पढ़ना नहीं आते हैं आपके पासवान से मांगो कि कैसा पढ़ सकते हैं। Altogether, if you are able to know the will of God in your life and do His will in your life, you will be a most blessed person in this world. यदि परमेश्वर की इच्छा को आप जानते हैं तो इस दुनिया में सबसे बड़ा आशीर्वाद पाया हुआ व्यक्ति आप हो सकता है। Let me pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। Loving Father, I thank you for this wonderful time. मेरे प्यारे पिता इस अच्छी समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। Some people are not able to understand your will in their own life.
कुछ लोग आपकी इच्छा को उनकी जिंदगी में जानते नहीं हैं, Because of that, they are suffering every day in this world. उसके कारण हर एक दिन ऐसी समस्याओं में वो गुजरते हैं, Because of that, they are under the curse. उसके कारण वो दबावट के नीचे होते हैं, Because of that, because of that, they are under the attack of the devil. उसके कारण शैतान उनको पकड़ती है। This morning, I release them in your name. इस सुबह आपके नाम से उनको मुक्ति देता हूँ, Also, I bless them in your name. वैसे ही आपके नाम से उनको आशीर्वाद देता हूँ। Lord, I ask you to send the Holy Spirit upon my people right now. वैसे ही आपकी पवित्र आत्मा मेरे लोगों पर ले चलने के लिए आपसे मांगता हूँ, And command for an inner healing in their life. वैसे ही उनकी घायल को दूर करने के लिए आपसे मांगता हूँ। Bless them until we meet again. प्रभु उनको आशीर्वाद कर जब तक हम फिर उनसे मिलें। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, Amen. यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा प्रभु, ओए मेरा सब कुछ है। यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा प्रभु, ओए मेरा सब कुछ है। होए उदार, ओए चट्टान, ओए उदार, ओए चट्टान, यीशु मेरा गढ़ है। यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा प्रभु, ओए मेरा सब कुछ है। यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा प्रभु, ओए मेरा सब कुछ है। भेड़ों के नाहे भटक रहा था, भेड़ों के नाहे भटक रहा था, तूने मुझे आवाज़ दी, पास बुलाया, गले से लगाया, नया जीवन दिया मुझको। पास बुलाया, गले से लगाया, नया जीवन दिया मुझको। यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा प्रभु, ओए मेरा सब कुछ है। Echo of His Call Ministries, 10 Muhammad Abdullah 2nd Street, opposite International Cricket Stadium, Chepauk, Chennai 600005, India. Phone 9144-2852-8282. Mobile phone and WhatsApp 91-98412-71858. Email sam@echoofhiscall.org. Website www.echoofhiscall.org. God bless you.